میں ہوں جاوید اختر وان، آپ دیکھ رہے ہیں گہبر نیوز نیٹ ورک۔ رپورٹ محمد صابرین۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول دکھنیر میں پی پی ایل کے تعاون سے قائم کی گئی سائنس لیبارٹری کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب سے سی ای او ایجوکیشن ملک محسن عباس، ہیڈ ماسٹر محمد ابراہیم اور سینئر کمیونٹی ڈیولپمنٹ آفیسر پی پی ایل سلمان حیدر نے خطاب کیا۔ اس تقریب میں اساتذہ کرام کے علاوہ پی پی ایل کے آفیسرز کامران مقبول، سردار اسلم، سلمان حیدر کے علاوہ ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر عبدالمجید، وزیر اعظم خٹک، نمبردار مشتاق خٹک، عبدالجبار خٹک، نصیر خٹک، گل رحمان سیف اور سینئر صحافی محمد صابرین بھی موجود تھے۔ مزید تفصیل جانیں اس رپورٹ میں۔ الحمدللہ کہ تحصیل جنگ کی سطح پر چاہے وہ تقریری مقابلے ہوں، سپیچز کے ہوں یا کھیل کا میدان ہو، گورنمنٹ ہائی اسکول دکھنیر کے بچے نمایاں پوزیشن پر کھڑے ہوئے۔ اس دفعہ بھی امسال جو ابھی حال ہی ہوئی ہے، 2 طلبہ تحصیل جنگ میں عدمی مقابلے میں 2nd اور 3rd پوزیشن پر ہیں، اور اس طرح 3 طلبہ جو تھے وہ تحصیل سطح پر کھیل کے میدان میں کی پوزیشن تھی، جس میں ایک جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے۔ جناب علی، پی ای ٹی کی سیٹ نہیں ہے جو مسٹ ہے کسی بھی ہائی اسکول کی، اور میری پی ای ٹی کی سیٹ کو آج سے 6 سال قبل ایسی اردو میں کنورٹ کر دیا گیا۔ آپ یہاں موجود ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پی ای ٹی کی سیٹ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ لہذا میری گزارش ہوگی اپنے چیف گیسٹ ملک محسن عباس صاحب سے کہ ہماری پی ای ٹی سیٹ کو اگر بحال کر دیا جائے تو یہ ہم پر ایک اور احسان ہوگا جاتے جاتے آپ۔ میری تجویز ہے سلمان حیدر بھائی سے کہ تاوقت اس سٹاف کی کمی کو پورا کرنے میں جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس سے بچنے کے لیے اگر آپ سالانہ 2 ٹیچرز کے فنڈ سکول ہزار کو مختص کر دیں تو ہمیں کوالٹی آف ایجوکیشن دینے میں تھوڑا آسانی ہوگی۔ نمبر 2، سولر پینل۔ گزشتہ دفعہ جب یہاں افتتاح تھا تو میں نے گزارش کی تھی اور میرے سی او صاحب کی خواہش بھی تھی۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے بھاری کم بل ہر آدمی کو مصیبت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ سکول کا بل ہے، آپ دیکھ لیں سکول میں پودوں کی تعداد کا اندازہ کر لیں، غالباً 500 سے ابو ہیں۔ جب ہم موٹر چلاتے ہیں تو ہفتہ میں پانی لگنا نصیب نہیں ہوتا ایک پودے کو۔ میری خواہش بھی ہے اور اپیل بھی ہے سلمان حیدر صاحب سے اور پی پی ایل سے کہ وہ سولر پینل سکول کو مہیا کرتا تاکہ بجلی کے بھاری بھرکم بلوں سے ہمیں نجات ملے۔ ہر سال کی طرح اس سال دکھنیر ویلفیئر فاؤنڈیشن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بے پناہ رول ہے مستحقین کی مدد کرنے۔ یہ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں انجم سفیر، مفتی اجاز صاحب اور انجم سفیر کا میں بے انتہا مشکور ہوں کہ ام سال بھی تقریباً 3 سکولوں میں انہیں 60 بچوں میں جرسیاں، شوز اور یونیفارم تقسیم کی۔ اہل علاقہ کی طرف سے ایک مطالبہ جناب چیف ایگزیکٹو کے ذمہ کر رہا ہوں
मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन क्या करें, ये भी एहसास है कि आपके आखिरी जो नहीं आती, थोड़ा सा तारुफ कर लेता हूँ। सलमान हैदर मेरा नाम है। 14-15 से मैं इब्राहिम भाई को जानता हूँ। जब से मैं इब्राहिम भाई को जानता हूँ, ये मुझे कहते थे कि यार ये साइंस लेबॉर्ट्री चाहिए, हॉल चाहिए, और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना क्रूज मिसाइल की तरह इब्राहिम भाई पीछे खड़े होते थे कि ये चीज़ आपने हमारे इदारे के लिए करनी है। अल्लाह का शुक्र है ये हो गई पीपीएल वालों की तरफ से। और भी हमारा इरादा है, पीपीएल का छोटा सा ऑपरेशन है, एक ही वेल है यहाँ पे। आपसे दुआ ये है कि अल्लाह हमें और तरक्की नसीब करे तो हम और काम कर पाएंगे। इब्राहिम भाई के साथ थोड़ा सा वो ये हुआ कि सारे जब ये मामलात उनके साथ हम डिस्कस करते थे 14-15 में, तो कुछ गाइडलाइंस वगैरह चेंज हो गई, जिसकी वजह से जो इलाके का जो पैसा था वो आज भी डीसी साहब के पास सोशल वेलफेयर का वो मौजूद है, पड़ा हुआ है। उसमें 1 रुपए भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। कुछ सियासी मामलात ऐसे हुए कि वो अभी तक सारा का सारा पैसा को सुल्तान का मौजूद है। मगर ये चीज़ें क्योंकि हमें करनी थी, यहाँ पे हमारे इलाके में पसमानगी भी है, बैकवर्डनेस भी है, इदारों में कमजोरियाँ भी थी, तो ये चीज़ मुझे अभी भी याद है। हम गए थे 2020 में, अली अनान कमर साहब होते थे डीसी साहब अटक के गए, तो हम कोविड का ज़माना था, तो स्कूल बैग्स वगैरह कुछ बच्चों को हम लेके गए उनके हाथ से दिलाने के लिए। तो जब उनको पता चला तो आपने तो कहा कि वो बड़ी खामोशी से उन्होंने सुना, वो सीट से अली अनान कमर साहब उछल गए जब उनको पता चला कि 30 साल से इधर एक हाई स्कूल है जिसमें साइंस लेबॉर्ट्री नहीं है। लिटरली वो सीट से ना वो शख्स उठ गया और उसने कहा यार इस पे आप कुछ करें या हमें कुछ करने दे। ये बहुत ही यानी एक नालायकी है कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो सकती। इसमें फिर हमें सीईओ एजुकेशन साहब का, मलिक साहब का भी ताउन शामिल रहा, वो सारी चीज़ हो गई। आज ये तैयार हो गया है, सोलर भी इंशाल्लाह आ जाएगा, और भी जो भी ज़रूरत है उसको हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। ये अपना इलाका है हमारा और अपने बच्चे हैं, मगर एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये जो सबसे कीमती चीज़ है इस इलाके में, वो दखनेर के इलाके में ना वो गैस है, ना वो तेल है, ना वो ये इमारतें हैं। वो यहाँ का, अगर आप समझते हैं कि इस दखनेर में सबसे कीमती चीज़ क्या है तो वो स्कूल है, और स्कूल में सबसे कीमती चीज़ क्या है, वो शायद यहाँ के बच्चे हैं जो यहाँ का फ्यूचर है। तो सबसे कीमती जो पूरी इस इलाके में, इस पूरी यूसी में जो कीमती चीज़ है वो ये बच्चे हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सबसे वो यही है कि ये अपने इलाके को उठाएंगे, ये कीमती चीज़ है, ये आगे इस इलाके को। एयरफोर्स में जब आप जाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि आप जहाज आपका गिर रहा है, तबाह हो रहा है, तो आप जहाज को बचा लें। वो कहते हैं आप इससे बाहर निकल जाए, क्योंकि कीमती उसके लिए वो पायलट है। सो यहाँ का जो बच्चा है, यहाँ का जो फ्यूचर है, जो सबसे कीमती चीज़ है वो बच्चे हैं, और बच्चों पे ही हमने इन्वेस्ट करना है। सो ये हमारी कमिटमेंट है, इस इलाके से भी है और स्कूल से भी है। बाकी स्कूल जो है इस इलाके में सारे हमारे लिए मोहतरम है, चाहे वो तोरे वाली है, चाहे ढोक हिंदू है, चाहे मलंगी है, वो सब हमारे लिए बराबर है। इब्राहिम भाई का तो इब्राहिम भाई हमारे पीछे इसलिए ज्यादा पड़ जाते हैं। अब तो मुझे भी कोई शक हो गया कि इब्राहिम भाई और मेरा कोई आपस में कोई चक्कर चल रहा है, तो ज्यादातर काम इधर ही हो जाते हैं। तो इब्राहिम भाई चीज छोड़ते नहीं है, इसलिए वो मजबूरन हमें पूरी करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह बाकी स्कूलों में भी काम करेंगे और स्कूल में भी इंशाल्लाह काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। प्रिंसिपल इदारा आज़म, फजीलतवाब अफसान PPL इंस्टॉलेशंस जनाब सलमान हैदर साहिब, सरदार असलम साहिब, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, इस इदारे के या दीगर इदारों से तशरीफ़ लाने वाले असातिज़ा इकराम और मेरा मुस्तक़बिल
मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा इश्क, मेरे ये प्यारे प्यारे बच्चे, मैं जनाब भटमार साहब का और इस इदारे के स्टाफ का इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने आज की इस तकरीब के हवाले से मुझे अपने बच्चों से मुलाकात का शर्फ और मौका फराहम किया। बहुत ही खुशी होती है, मुख्तलिफ पोजीशंस पे बंदा काम करता रहता है, बग़ैर दुनिया के सामने वो एजाज़ की बात भी होती है, नेक नामी का बायस भी होती है, लेकिन मेरा जो फ़ख्र है, मेरा जो एजाज़ है, जिस पे मैं मान करता हूँ, मैं हमेशा कहता रहता हूँ हर जगह कि मेरा जिस इलाके से ताल्लुक़ है, इस पे हमेशा मुझे फ़ख्र रहा है। तकनेर और जमाट में कोई फ़र्क नहीं, मैं यहाँ के ऐसे ही लगता है जैसे मैं अपने घर में आया हूँ। बहुत ही मशहूर हूँ PPL अथॉरिटीज़ का कि बिलखसूस मैं ये समझता हूँ कि सलमान हैदर साहब का खसूसी प्यार है, खसूसी शफ़क़त है, उनकी ये हुब्बुल-वतनी भी है और कौम दोस्ती भी है कि वो सोशल वेलफेयर के कामों में, तालीमी इदारों में मौजूद जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, इन्हें वो अपनी प्रेफरेंसेस में रखते हैं और उन्होंने बहुत सारे हमारे तालीमी इदारों में इस तरह के मिसिंग फैसिलिटीज़ को पूरा करने के लिए स्कीम्स दी हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब की भी मंजूरी शामिल होती है। बिलखसूस आज की तकरीब जिसमें कि ये फिज़िक्स लैब, साइंस लैब, बायो लैब की इस्टेब्लिशमेंट, यानी पहले यहाँ पे एक इमारत जो है वो बनाई गई और उसके बाद साइंस इक्विपमेंट फराहम किया गया। तो मैं आज की इस तकरीब के हवाले से अपने डिपार्टमेंट के भी आप पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी आप पे और DC साहब के भी आप पे PPL अथॉरिटीज़ की खिदमत में हदिया तशक्कर पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस तालीमी इदारे गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल तकनेर को इतनी अच्छी और शानदार लेबॉर्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट में उन्हें ताउन किया। आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे इज़्ज़त माब डिप्टी कमिश्नर जनाब राव आतिफ रज़ा साहब। उन्हें हम रिक्वेस्ट करते रहे और उन्होंने बखुशी एक दफ़ा भी यहाँ आने के लिए हामी भर ली और मैं टाइम दे दिया। मेरे साथ उधर हमेशा मेरा साथ देते हैं मोहतरम बिरादर जनाब साबरीन साहब, वो मुझे याद दहानी कराते रहते हैं, यहाँ के जो काम है वो बताते रहते हैं। उस वक़्त जो DC साहब ने हमें टाइम दिया था वो कुछ उसमें कैलिब्रेशन नहीं हो सकी, PPL अथॉरिटीज़ की तरफ से उन्हें कुछ तैयारी दरकार थी। तो फिर 2 दिनों के बाद हमने DC साहब को जाकर माजरत पेश की कि अभी सर अगर आपने जाना है तो 8-10 दिन के बाद का टाइम जो है काइंडली दें। तो वो प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो गया। फिर जब इब्राहिम साहब ने अब ये प्रोग्राम तरतीब दिया तो फिर साबरीन साहब ने मुझे हुक्म किया और मैं DC साहब की खिदमत में मैंने ये रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बखुशी इसे कबूल कर लिया। इत्तफाक की बात है कि इन पोजीशंस में मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से मीटिंग्स आ जाती हैं और अब इलेक्शन की प्रेपरेशन के हवाले से आज पंजाब भर में तमाम ACs जो है ज़िले इंतज़ामिया जो है उसके लिए ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कराई जा रही है। तो फिर DC साहब को यहाँ आना उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आप मेरी जगह पे वहाँ पे जाएं और बच्चों की खिदमत में भी मदद पेश करें और स्कूल की इंतज़ामिया को भी मेरी तरफ से एक्सक्यूज़ करें। तो मैं यहाँ के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनकी खिदमत में माज़रत पेश करना चाहता हूँ कि उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी इस इलाके के लोगों से मिलने के लिए और इस स्कूल से बच्चों की मुलाकात के लिए, लेकिन उनकी जो पेशा वाराना जो मसरूफियात थी उस बुनियाद पर वो तशरीफ़ नहीं ला सके। लेकिन वो फरमा रहे थे कि जब भी मुझे मौका मिला मैं बॉयज़ हाई स्कूल देखने ज़रूर जाऊँगा। काफ़ी बातें हो चुकी हैं, कुछ ज़्यादा आपका टाइम लेना मुनासिब नहीं है।
کچھ احکامات محترم جناب ایڈمار صاحب فرما رہے تھے، ابراہیم صاحب، سٹاف کے حوالے سے. تو آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سسٹم کو اس طرح کا ہو گیا ہے کہ لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، اور یہ اختیارات جو ہیں وہ کہیں اور مرکوز ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے میرا اپنا مزاج بھی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے اور اپنے علاقے کے معززین کے سامنے کوئی غلط بیانی کی جائے، یہ مناسب بات نہیں ہے. جہاں تک سٹاف کی پروویژن کا معاملہ ہے تو گزشتہ 6 سالوں سے پنجاب بھر میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی تقرری نہیں ہو سکی. یہ ہماری بدقسمتی ہے. نتیجتاً پنجاب بھر میں اس کی شارٹیج ہوگی، ہمارے ضلع میں بھی شارٹیج ہے، اور لائک وائز اسکول میں بھی شارٹیج ہے. تو جو میرے بس میں ہے، جو میں کر سکا وہ میں کروں گا، جو پی پی ایل والے جو ہیں کر سکے وہ کریں گے. سلمان حیدر آپ یہی سمجھیں کہ دکنیر کا ہے، وہ اپنے آپ کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں پہاڑ کی جو ہے نا وہ ڈومیسائل بھی ختم کرتا ہوں، دکنیر سے بنوا لیں. آپ کو ٹیچر ایک بات پھر میں نے آخر میں آپ سے کرنی ہے، دکنیر والوں سے کرنی ہے. ایک ٹیچر کی یہاں پہ تعیناتی کی اٹیچمنٹ کے لیے مجھے حکم ہو رہا تھا، جو کونسل صاحب نے پھر اسے پکا کر دیا یہاں آ کے، وہ انشاءاللہ پرسوں آرڈر ہو جائے. دیکھتے رہیے GNN.